or oftenly using the steel structures also, ठीक है ना. So steel structures in foreign countries also, in India also, many structures it has been constructed of steel, because steel it is having various advantages as compared to the RCC members. So steel structures plays an important role. So here in this steel structure subject, we will go through the various contents related with the design of steel structures. Actually, it is a design of steel structure. So how to design the various members, what are the different connections to be made while connecting two members, if there are two members which has been connected to each others, so how they are connected, what are the different criterias on which they will be connected, and what are the different members to be designed, है ना. As you have already seen the steel structures nowadays, are the basic examples for the steel structures are the foot over bridges, है ना. Foot-over bridges or railway bridges are the commonly used steel structures. Railway bridges are there, foot-over bridges are there. When we are crossing the highways from one end to other end, so there is a foot-over bridge which has been made up of steel. And also you have already also seen in the railways also, when we have to cross a railway track from one end to other end, from one platform to other platform, so we have to cross through the steel structures, okay. So steel structures, so these steel structures, it has been used in railways also. It can be used for foot-over bridges also. Nowadays, there may be a steel bridges also. Okay, na? Steel bridges. Okay, the steel bridges can also be made up of steels. Okay, instead of RCC members, it has been made up of steel also. Okay, na? There may be warehouses which can be made up of steel. There may be factories which can be made up of steel. Nowadays, residential buildings can also be made up of steel also. Okay, because erection point of view, it has been fastly erected as compared to the RCC structures, because RCC structures requires time for curing, time for shutterings or formworks के लिए सारे all these things require time. But steel structures doesn't require any time. It just require the fabrications of steel, just jointing and just erections. It has been required. So time for construction it has been reduced in case of steel structure. So nowadays it has also been used in the residential buildings also. Okay, na residential building maybe nowadays it has been switch over, instead of RCC structures, peoples are or the different structures it has been made up of steel also. Okay. So in this steel structure we will go through the different contents. Actually, in this steel structure there are 4 units. Okay. Normally you have seen every subject it is having 6 units, but here steel structures it has been having 4 units. इसमें जो है steel structures में 4 units are there. First unit is basic unit is there, which we will have the basics regarding IS 800 2007. ठीक है ना. First thing it is to be kept in mind, regarding steel structures, you have to refer the IS code. ठीक है ना. IS code is very very important while designing the steel structures. Is that clear to everyone? Am I audible to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ. तो IS 800 2007 it is very very important for designing of various members in a structure. ठीक है ना. स्टील स्ट्रक्चर के members को डिजाइन करने के लिए IS 800 it should be very very मतलब every page or every contents it is to be cleared regarding IS 800 2007. ठीक है ना. IS 800 2007 में every page पे टेबल पे which contents are there it should be thoroughly go through, है ना. आपको जो है हर पेज में क्या कंटेंट्स है, कौन सा डिजाइन स्टेप गिवन है, बिकॉज आई एम सेइंग दैट स्टील स्ट्रक्चर इज nowadays it is also it is very very important and it is related with the IS 800 2007. ठीक है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो कंटेंट्स गिवन है IS 800 2007 में, द सेम कंटेंट्स टू बी टेकन केयर इन वेरियस स्टेप्स, है ना. स्टेप्स के फॉर्म में आपको लेना है और वेरियस स्टेप्स के फॉर्म में उसको लेके आपको डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू कैरी आउट. ठीक है ना. तो आपको एवरी कंटेंट इट हैज बीन गिवन इन IS 800 2007. हर चीज आपके IS 800 2007 में गिवन है. बस ये है कि विच कंटेंट टू बी टेकन फॉर विच डिजाइन स्टेप, है ना. ठीक है. तो आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस स्लाइड्स विच हैज बीन गिवन. तो आज का एज इट इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टिव लेक्चर रिगार्डिंग दिस.
So we will have the evaluation scheme regarding the steel structures, which things to be covered in steel structure. We will see as per the your syllabus, RT menu syllabus. It is having a weightage of 80 marks for university exams, and college assessment, internal assessment is there, which is based on assignments, which is based on attendance, which is based on your performance. So it has been given as 20 marks for your college internal assessment. It has been given as 20 marks for college internal assessment, and 80 marks for university exams. So in this way, there is an 100 marks is there. Beyond this, there will be a practical assessment of 25 marks, that is the internal assessment, and there will be a practical external assessment of for again 25 marks. The overall weightage given for this steel structure is 150 marks, ठीक है ना. टोटल वेटेज गिवन फॉर दिस स्टील स्ट्रक्चर इज 150 मार्क्स, जिसमें से 80 मार्क्स का तो यूनिवर्सिटी रिटर्न पेपर होगा आपका, है ना. उसके अलावा फिर इंटरनल असेसमेंट होगा 20 मार्क्स का, जिसमें असाइनमेंट्स होंगे, और जिसमें वेरियस डिजाइनिंग जो कंसेप्ट है दैट इज टू बी रिटर्न डाउन इन वेरियस मतलब पेजेस पे लिखना है, आपको सबमिट करना है. और आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा, आपका जो अटेंडेंस रहेगा, विल बी टेकन केयर इन दिस 20 मार्क्स. 25 मार्क्स देयर विल बी प्रैक्टिकल्स. तो हर डिजाइन स्टेप का, डिजाइन प्रॉब्लम्स का वी विल हैव अ प्रैक्टिकल्स, है ना. प्रैक्टिकल्स रहेंगे आपके, हर टॉपिक के रिलेटेड प्रैक्टिकल्स रहेंगे. और इसमें प्रैक्टिकल्स ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा परफॉर्मेंस होता है, जैसा कंक्रीट में आपने प्रैक्टिकल्स किए होगे, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में किए होगे, या फिर कोई भी सब्जेक्ट में ऐसे में किए होगे कि परफॉर्मेंस हो रहा है, उसका बेंडिंग मूवमेंट निकल रहा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा. यहाँ पे प्रैक्टिकल्स कैसे रहेंगे, जो डिजाइनिंग स्टेप्स मैं बताऊंगा या फिर डिजाइनिंग प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे अपन लेक्चर्स में, द सेम विद सम डिफरेंट डाटा विल बी रिटन इन द रिकॉर्ड बुक्स, है ना. सेम रहेगा, उसके स्टेप्स वो सारे डिजाइनिंग के रहेंगे. आपको डिजाइन करना पड़ेगा कोई मेंबर को, डिफरेंट लोड कंडीशंस रहेगा, डिफरेंट उसके जो गिवन डाटा डिफरेंट रहेगा, और उसको वी हैव टू रिटर्न डाउन इन अ रिकॉर्ड बुक्स, ठीक है. आपके जर्नल पेपर्स में आपको लिखना है और वो सबमिट करना है, ठीक है. तो इंटरनल प्रैक्टिकल असेसमेंट 25 रहेगा, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल असेसमेंट 25, ओवरऑल 150 मार्क्स, ठीक है. इसमें क्या रहेगा, असाइनमेंट्स में आपको शीट्स ड्रॉ करना पड़ेगा, डिफरेंट A2 साइज शीट्स में, डिफरेंट उसके जो मेंबर्स, जैसे जैसा एक ट्रस है ना. ट्रस में जैसा हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता है, इंक्लाइंड रहता है, वर्टिकल मेंबर्स रहता है, फिर उसका रूफ टॉप रहता है. तो ट्रस के वेरियस मेंबर्स डिजाइन करो आप. कॉलम है तो कॉलम का, स्टील कॉलम है उसको डिजाइन करना है, स्टील बीम है उसको डिजाइन करना है, डिफरेंट शेड है, शेड का एक मेंबर है उसको डिजाइन करना है, उसको ड्रॉ भी करना है. तो A2 साइज शीट में इट इज टू बी कैरिड आउट, ठीक है. तो ये प्रैक्टिकल असेसमेंट में रहेगा, और इंटरनल असेसमेंट में दिस थिंग्स विल बी कवर्ड, ठीक है. Next, in a short way, we will go through the different contents which has been carried out in steel structures में क्या क्या contents रहेंगे. तो unit number 1, it will be based upon the grades और steel materials. कौन से steel materials use होता है while carrying out, कौन से members steel के अपन nowadays it has been used for construction of steel structures में कौन से members use हो सकते हैं. तो उसका introductive part will be carried out in unit number 1, जिसमें स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल होगा. वेरियस ग्रेड्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेड्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील रहेगा. उसमें रोल्ड स्टील सेक्शंस रहते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग कोल्ड फॉर्म सेक्शंस, वेरियस रहते हैं. रोल्ड रहता है, स्ट्रक्चरल पाइप है, ट्यूब सेक्शंस है, डिफरेंट सेक्शंस है. मतलब सेक्शंस के बारे में वी विल स्टडी ऑन इन यूनिट नंबर 1. आई सेक्शंस, एल सेक्शंस, सी सेक्शंस, सर्कुलर सेक्शंस, रेक्टेंगुलर सेक्शंस, है ना. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के हिसाब से बोलो, या फिर उसके रोल्ड स्टील सेक्शंस के हिसाब से बोलो, वी विल स्टडी इन दिस कंटेंट यूनिट नंबर 1 में डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है ना. सेक्शंस आप कंसिडर करेंगे. अब उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं, ठीक है. अगेन दिस प्रॉपर्टीज विल बी गिवन इन IS 800 2007 में. उसके प्रॉपर्टीज है, उसका इलास्टिक प्रॉपर्टीज रहेगा, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज रिलेटेड, इलास्टिक मॉड्यूलस रहेगा उसका, है ना. स्ट्रक्चरल स्टील का उसका डेंसिटी रहेगा. तो ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील विल बी कैरिड आउट इन यूनिट नंबर 1. अगेन दिस शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ IS 800 2007. जैसे मैं बता रहा हूँ, IS 800 2007 इज ऑल्सो देयर, IS 808 is there, 816 is there, and 875 are there. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस IS 800, है ना. ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है. तो दिस टोटली डिजाइन जो है आपका वो इट हैज बीन बेस्ड ऑन दिस IS 800 2007. इट हैज बीन रिवाइज्ड इन 2007. तो 2007 में रिवाइज्ड हो गया था. तो एज पर रिवाइज्ड कोड वी हैव टू डिजाइन द वेरियस मेंबर्स ऑफ स्टील.
तो IS 800 भी है वैसा 808, इसमें कुछ कुछ कंटेंट्स है, बाकी 800 में मैक्सिमम कंटेंट्स विल बी कवर्ड, है ना। मैक्सिमम डिजाइनिंग स्टेप जो है वो IS 800 में गिवन है, तो देयरफॉर वी विल टेक दिस एज अ डिजाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। IS 800 2007। इंट्रोडक्शन टू प्लास्टिक एनालिसिस, शेप फैक्टर्स, इसके जो प्रॉपर्टीज रहता है प्लास्टिक एनालिसिस, मतलब अगर लोड आता है तो प्लास्टिक पॉइंट जो रहता है उसमें वहाँ पे ब्रेकेज होता है, तो प्लास्टिक एनालिसिस भी होगा आपका डिफरेंट मेंबर्स का। लोड आने के बाद में उसका जो कर्व बनता है, शेप जो बनता है उसका, वेरियस कंटेंट्स विल बी कैरिड आउट, प्लास्टिक एनालिसिस होगा, शेप फैक्टर्स होगा, प्लास्टिक हिंज प्रोवाइड होता है, फॉर्मेशन, कोलैप्स, मैकेनिज्म फॉर द बीम्स, कोलैप्स लोड पे जो मैकेनिज्म फॉर्म होता है कोलैप्स लोड, तो ये विल बी कैरिड आउट इन यूनिट नंबर 1, ठीक है। अब यूनिट नंबर 1 में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो स्टार्टिंग के जो दो पॉइंट्स जिक्र है आपको, एक तो स्टील के बारे में पढ़ेंगे आप, सेक्शंस के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे आप प्लास्टिक एनालिसिस के बारे में। थर्ड जो बीट बता रहा है यूनिट नंबर 1 में, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज नथिंग बट दीज टू थिंग्स ए एंड बी। ये जो ए और बी जो दिख रहा है आपको, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है यूनिट नंबर 1 के। क्या कंटेंट्स है वो? तो डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड मेंबर्स, टेंशन मेंबर्स एंड कंप्रेशन मेंबर्स, मतलब आपको यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में डिजाइन करना है टेंशन मेंबर्स एज वेल एज कंप्रेशन मेंबर्स, ठीक है। तो ये दोनों मेंबर्स आप डिजाइन करेंगे यूनिट नंबर 1 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका टेंशन मेंबर्स कैसे डिजाइन होते हैं, कैसा स्टेप्स फॉलो होता है, कैसा लोड टेकिंग कैपेसिटी या फिर उसके जो मेंबर्स डिजाइन होते हैं, वो सारा IS 800 में गिवन है, उसका कैसे कैसे यूज करेंगे वेरियस स्टेप्स में वी विल सी। So first we will design about the tension members, then we will see about the compression members, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस रहता है, लोड असेसमेंट फॉर डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड, मतलब लोड कैलकुलेशंस कैसे लेते हैं, विच आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन विच वी आर टेकिंग द लोड्स, डेड लोड कौन से पैरामीटर्स पे लेते हैं, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, ये भी अगेन IS 800 2007 में गिवन है। इसका एक टेबल है डेड लोड का, लाइव लोड का, इसका कॉम्बिनेशंस भी रहता है, DL प्लस LL प्लस WL, या फिर इन सम केसेस में जहाँ पे विंड स्पीड कम है या फिर विंड नहीं है तो DL प्लस LL भी ले लेंगे, डेड लोड प्लस लाइव लोड ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस और ये सारा जो उसका जो फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी रहता है तो वो कितना रहेगा, तो वी विल स्टडी इन दिस अगेन बिट नंबर 4, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर जितना कंसेप्ट आपका टेंशन और कंप्रेशन मेंबर्स से रिलेटेड डिजाइन का क्लियर होगा, बिकॉज आगे चल के यही मेंबर्स आपके डिजाइन होंगे, टेंशन और कंप्रेशन मेंबर्स जितना यूनिट नंबर 1 में कंसेप्ट क्लियर होगा, तो उसी के बेस पे वी विल हैव द एक्चुअल डिजाइन ऑफ कॉलम एंड एक्चुअल डिजाइन ऑफ बीम्स इन नेक्स्ट यूनिट्स, है ना। आगे की यूनिट जो बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 1, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, next is unit number 2. Unit number 2 is fasteners. What is fasteners? Fasteners क्या हो सकते हैं? Yes, any idea about what is fasteners? Fasteners क्या होता है? What this terms relates with? Structural fasteners. Fasteners क्या होंगे? Yes, any idea about this? Fasteners? सर रेलवे ट्रैक में यूज होते हैं फास्टनर्स। Yes. फास्टनर्स इन सिंपल वर्ड में कैसा है कि व्हेन टू मेंबर्स इट हैज टू बी ज्वाइंट, है ना, कोई दो मेंबर्स को अपन फास्टन करें मतलब इट हैज टू बी ज्वाइंट टुगेदर। अब दो मेंबर्स ज्वाइंट हो रहे हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर ज्वाइनिंग दीज टू मेंबर्स, ठीक है ना। ये दो मेंबर्स क्या बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, बिकॉज स्टील के आप देखेंगे कि आपके मेंबर्स ज्वाइन करना है, जैसा आप नॉर्मली RCC में देखेंगे कॉलम और बीम का ज्वाइन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ज्वाइन मतलब क्या है? कास्टिंग, है ना, कंक्रीट से कास्ट हो गया, ज्वाइंट हो गया। बट स्टील का क्या होता है कि दो मेंबर्स को एक्चुअल आपको ज्वाइंट करना पड़ता है, और जितना ज्वाइंट स्ट्रांग होगा उतना लोड टेकिंग कैपेसिटी विल बी मोर, है ना। अगर जितना ज्वाइंट पे वीक होगा और ज्वाइंट पे ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर होगा, फेलियर होगा, उतना आपका स्ट्रक्चर की लाइफ लेस होगी, ठीक है। तो इसलिए फास्टनर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना, हाउ वी आर फास्टनिंग द टू मेंबर्स, हाउ वी आर ज्वाइनिंग द टू मेंबर्स। तो अगेन दिस क्राइटेरिया यूनिट नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप ज्वाइन कैसे करेंगे, कौन से कंडीशंस पे कैसा ज्वाइन होगा, कैसा उसका क्राइटेरियाज रहेगा, तो दिस थिंग्स विल बी कवर्ड अगेन इन यूनिट नंबर 2, दैट इज द बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस। नॉर्मली आपने देखे होंगे कि दो मेंबर्स ज्वाइंट होते हैं तो उसमें एक तो बोल्ट से ज्वाइंट हो सकते हैं या फिर वेल्डिंग से ज्वाइंट हो सकते हैं, ठीक है।
आपका असल में रिबिट भी था, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था रेलवे का जो फुट ओवर ब्रिज था, पहले रिवेटिंग से होता था। रिवेटिंग मतलब कैसा है कि थोड़ा सा एक प्रेशर से उसको प्रेस करके उसको रिवेट होता था, वो थोड़ा सा पुराने आईएस कोड के हिसाब से था। आईएस 800 2007 ने रिवेट को थोड़ा सा क्या किया कि उसमें क्रैक ज्यादा होते हैं और थोड़ा सा लाइफ स्पैन होने की वजह से रिवेट जो रहता है उसको निकल भी जाता है। तो इसलिए दो ही बच गया है, एक तो बोल्टेड कनेक्शंस, दूसरा है वेल्डेड कनेक्शन। मतलब दो मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए आप बोल्ट यूज कर सकते हैं, या फिर दो मेंबर्स को ज्वाइन करने के आप वेल्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फैब्रिकेशन में जो आपने वेल्डिंग देखे होंगे वो वेल्डिंग, ठीक है, बट उसका क्या डिसिग्नेशन रहेगा, उसके क्या प्रॉपर्टीज रहेगा, क्या उसके स्ट्रेसेस रहेंगे, कैसा वो डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये सारे डिजाइनिंग स्टेप्स रिगार्डिंग वोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस, उसका डिसिग्नेशंस, उसके प्रॉपर्टीज, मतलब ये दोनों के परमिसेबल स्ट्रेसेस कितना लेंगे, वोल्ट कितना स्ट्रेस लेगा, वेल्ड कितना स्ट्रेस लेगा, उसके क्या प्रॉपर्टीज है, वोल्टेड के वेल्डेड के क्या प्रॉपर्टीज है, कैसा कैसा ये फेलियर होता है, कौन से सिचुएशंस में, कौन से कंडीशंस में इट इज प्रेफरेबल टू हैव अ वोल्टेड कनेक्शंस और वेल्डेड कनेक्शंस। मतलब ये सारा फेलियर्स ऑफ बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन, स्ट्रेंथ उसका किसका ज्यादा रहेगा, बोल्ट का ज्यादा रहेगा क्या वेल्ड का ज्यादा रहेगा। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन यूनिट नंबर 2 के फर्स्ट बिट में, ठीक है। बिकॉज आगे जाके आपको कनेक्शंस करना है, डिजाइन करना है, तो बोल्टेड ज्यादा इजी डिजाइन होगा कि वेल्डेड ज्यादा इजी डिजाइन होगा, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहेगा, बोल्ट का ज्यादा रहेगा कि वेल्ड का ज्यादा रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको कवर होगा यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, मतलब स्ट्रेंथ जो है इफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू कौन इफिशिएंट है, वेदर इट इज बोल्टेड इज मोर इफिशिएंट और वेल्डेड इज मोर इफिशिएंट, ठीक है। तो डिजाइन क्राइटेरिया से वी विल डिसाइड कि ये दोनों में से कौन इफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो अगेन देयर विल बी सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद द इफिशिएंसी, ठीक है ना, इफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट। डिजाइन ऑफ सिंपल बोल्ट, वेल्डेड कनेक्शन, सिंपल बोल्ट से कोई अगर मेंबर्स ज्वाइंट होता है या फिर वेल्डेड कनेक्शन से मेंबर्स ज्वाइंट होते हैं, उसका क्या रहेगा, उसका रेजिस्टेंट क्या रहेगा, मोमेंट रेजिस्टेंट, बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस कितना मोमेंट रेजिस्ट करेगा, ठीक है। बेंडिंग में कितना करेगा, टॉर्शन में कितना करेगा, कौन उसका मतलब टॉर्शन में कितना उसका वो होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेंडिंग एंड टॉर्शन में दोनों का बोल्टेड और वेल्डेड कनेक्शंस का क्या क्या रहेगा बेंडिंग एंड टॉर्शंस में। अगेन अब आपने ये समझ में आ गया कि ये बोल्टेड है और ये वेल्डेड है, तो अब उसके हिसाब से एक छोटा सा डिजाइन करेंगे आप कि दो बीम को ज्वाइन करेंगे या फिर बीम और कॉलम को ज्वाइन करेंगे, किससे, वेल्डिंग से और बोल्टिंग से, ठीक है। तो आखिरी में उसने क्या किया, ये सब कंसेप्ट होने के बाद उसने डिजाइन किया, डिजाइन ऑफ कनेक्शन, दो बीम्स को कनेक्ट करो या फिर बीम और कॉलम को कनेक्ट करो थ्रू बोल्टिंग और थ्रू वेल्डिंग, ठीक है ना, बोल्ट से कनेक्शन करो या फिर वेल्ड से कनेक्शन करो, ठीक है। तो आगे अगेन देयर इज द डिजाइनिंग ऑफ कनेक्शन, मतलब हर यूनिट में डिजाइनिंग है। यूनिट नंबर 1 में भी डिजाइनिंग था, यूनिट नंबर 2 में भी डिजाइनिंग है रिलेटेड टू दिस, ठीक है। अगेन यूनिट नंबर 3 देखो क्या है, अगेन जो आपने कंसेप्ट 1 और 2 में जो पढ़े थे, 1 में पढ़े थे मेंबर्स के बारे में, 1 में पढ़े थे टेंशन और कंप्रेशन के बारे में, 2 में पढ़े थे यूनिट नंबर 2 में कि कनेक्शन कैसा होगा, बोल्ट से होगा क्या वेल्ड से होगा। अब ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो अब तीसरे पे आओ, अब डिजाइन करो, एक्चुअल डिजाइन करो। यूनिट नंबर 3 इज एक्चुअल डिजाइन ऑफ सिंपल एंड बिल्ट अप बीम्स, ठीक है। एक्चुअल कैसे डिजाइन होगा बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 1 एंड 2। अब एक्चुअल डिजाइन आप स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 3 में, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ सिंपल एंड बिल्ट अप बीम्स, ठीक है। सिंपल बीम कैसा रहेगा और बिल्ट अप बीम्स, ठीक है, व्हेन डिफरेंट बीम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स, है ना। तो बिल्ट अप बीम्स कितने रहेंगे, laterally restrained and unstrained, symmetrical as well as unsymmetrical sections रहेगा, कुछ sections symmetrical रहेंगे, कुछ sections unsymmetrical रहेंगे, उसका आपको डिजाइन करना है बीम्स के लिए, ओनली बीम्स। ये जो रहेगा यूनिट नंबर 3, इट इज टोटली बेस्ड ऑन बीम्स, बीम्स के ऊपर डिजाइन ऑफ बीम रहेगा, ठीक है। कर्टलमेंट कितना रहेगा उसका, ऑफ फ्लेंज प्लेट्स अगर अगर आप यूज कर रहे हैं आप, तो उसका कर्टलमेंट कितना रहेगा। डिजाइन ऑफ वेल्डेड प्लेट गर्डर्स, तो वेल्डेड अगर प्लेट गर्डर्स यूज हो रहे हैं तो उसका डिजाइनिंग स्टेप्स क्या रहेगा। तो ऑल दिस विल बी टेकन केयर इन द यूनिट नंबर 3। मतलब यूनिट नंबर 3 इट हैज बीन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो इट इज डिजाइन ऑफ बीम्स, अगर देखा जाए तो इट इज जस्ट द डिजाइन ऑफ बीम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4। अब इसमें क्या है, डिजाइन ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसा वहां पे बीम था, अब यहाँ पे क्या आएगा, डिजाइन ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 क्या है, डिजाइन ऑफ सिंगल रोल स्टील सेक्शन कॉलम। वहाँ पे बीम था, अब यहाँ पे डिजाइन ऑफ कॉलम हो गया, सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड बाई एक्सियल मूवमेंट इंक्लूडिंग बेस डिजाइन।
मतलब अगर कॉलम अगर सिंगल एक्सियल लोड अगर अप्लाई हो रहा है तो उसमें क्या डिजाइन होगा, बाई एक्सियल मूवमेंट और इंक्लूडिंग बेस डिजाइन करना है आपको बेस में। जैसे आपने देखे होंगे, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था रेलवेज के, है ना, रेलवेज का जो पूरा फुट ओवर का जो ब्रिज है ऊपर का, वो उसका लोड काय पे आता है, कॉलम पे होता है। और कॉलम नीचे काय पे कनेक्टेड होता है, आपने देखे होंगे बोल्ट से एक प्लेट रहती है, ठीक है ना, दैट प्लेट इट हैज बीन जॉइंटेड टू द आरसीसी का एक नीचे कॉलम रहता है, ठीक है। वो कॉलम में जाके वो प्लेट क्या होती है, बोल्ट से टाइट होती है, ठीक है। दिस बेस डिजाइन वी हैव टू टेक इन केयर, ठीक है ना, उसमें क्या करना है आपको, बेस डिजाइन करना, उसका बेस डिजाइन करना, ठीक है। बेस डिजाइन भी रहेगा आपका, नीचे का बेस जो रहता है कॉलम का वो भी डिजाइन करना है आपको, ठीक है। इसलिए इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बेस डिजाइन, यहाँ पे वर्ड क्या किया इसने कि कॉलम भी डिजाइन करो और इंक्लूडिंग बेस डिजाइन, मतलब नीचे का जो बेस है जहाँ पे वो कॉलम जाके रेस्ट होता है उसको भी आपको डिजाइन करना है, उसके जो प्लेट्स, उसके जो नंबर ऑफ बोल्ट्स, उसका जो लो टेकिंग कैपेसिटी है, उसका भी डिजाइन करना है, बेस डिजाइन। नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ एक्सिली लोडेड बिल्टअप कॉलम्स। अब अब कॉलम है, कॉलम आपने देखे होंगे कि उसमें चार जैसा एक वो रहते हैं, जैसा एल सेक्शंस बोलो, आई सेक्शंस रहते हैं। अब वो कनेक्टेड कैसे रहेंगे, एक तो लेज्ड रहेगा और एक तो बैटन्स रहेंगे, मतलब एक क्रॉस बार्स रहते हैं और एक तो स्ट्रेट बार्स रहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट स्ट्रेट भी कनेक्टेड होते हैं दो कॉलम्स, और क्रॉस में भी कनेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सिंपल वे में, जैसा एक शॉर्ट में अगर आप आपको मैं बताता हूँ, जैसे एक ये एक कॉलम है, ठीक है, और ये एक कॉलम है, ठीक है। हियर इट इज आल्सो हैविंग अ वन कॉलम। तो अगर दो कॉलम्स को अगर हॉरिजॉन्टल वे से अगर डिजाइन करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो इसमें कैसा कनेक्शन होगा, और वर्टिकल वे से अगर कनेक्शन होता है, ठीक है ना, ये जैसा ये दो कॉलम्स, ठीक है। अब इसको आप दो क्राइटेरिया से डिजाइन कर सकते हैं, इसको कनेक्शन कर सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल कनेक्शन करो इसको, एक तो ब्रेसिंग कर सकते हैं इसको ऐसा क्रॉस में, ठीक है। आपने देखेंगे ऐसा क्रॉस में ब्रेसिंग होती है, ठीक है। और दूसरी ब्रेसिंग होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें दूसरी ब्रेसिंग क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। तो अब ये हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग भी होती है, तो ये भी डिजाइन करना है आपको, ये भी डिजाइन करना पड़ेगा इसको। अगर हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग करते हैं आपको, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल में, तो ये भी मतलब ये क्रॉस भी डिजाइन करना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल भी मेंबर्स में जो होते हैं ये स्टील मेंबर्स, ये भी डिजाइन करना है, ये क्रॉस भी करना है, उसको बोलते हैं लेसिंग और बाइटिंग। लेसिंग इज क्रॉस सेक्शन और 45 डिग्रीज पे रहता है, हॉरिजॉन्टल जो रहेगा वो 180 डिग्रीज पे, दैट इज पैटर्न। और ये वर्टिकल जो रहेगा दैट इज नथिंग बट कॉलम, ठीक है। इसको स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए ये चारों मेंबर्स को आप कनेक्शन करते हैं, ये इंक्लाइंड मेंबर से और हॉरिजॉन्टल मेंबर से। तो ये कनेक्शन पार्ट विल आल्सो बी कवर्ड इन दिस यूनिट नंबर 4, ठीक है ना। ये कनेक्शन जो पार्ट है वो भी कवर्ड होगा आपका यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। तो column bases, slab bases, gusset base, and movement resistant bases. So this all will be covered in unit number 4. Okay. So again, the various textbooks used for this steel structure is Subramanya and Dr. Tandage or Sajjan Waghe. ये सारे हैं, और दुग्गल की भी एक बुक आती है स्टील स्ट्रक्चर्स की। वी कैन रिफर दिस डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स फॉर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। हर एक टेक्स्ट बुक में डिफरेंट स्टेप्स गिवन है, थोड़ा सा प्रॉपर वे में वी हैव टू गो थ्रू ऑल दीज स्टेप्स, है ना। वी विल कवर ऑल द 4 यूनिट्स, द डिफरेंट स्टेप्स कवर्ड इन दिस 4 यूनिट्स जो है वो ऑल दिस 4 यूनिट्स विल बी कवर्ड इन द क्लास, ठीक है। So here, as today was the first lectures, we have gone through the basics regarding what is actually a steel structure। आपने थोड़ा सा माइंड क्लियर होगा कि स्टील स्ट्रक्चर रहता क्या है, कैसा डिजाइन करेंगे। तो ये सारी चीजें वी हैव कवर्ड इन टुडेज इंट्रोडक्टिव लेक्चर्स। एक्चुअल में फर्स्ट नेक्स्ट लेक्चर से वी विल एक्चुअली हैव द यूनिट नंबर 1। Actually, this is online mode is there, therefore it is little bit difficult to understand the different design steps, but we will carry out or we will have a simplest way to design the steps, क्या क्या हो सकते हैं उसके डिजाइन पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अपन we will try to cover all the things related with design in online mode also। unless जब ऑफलाइन हो जाएगा तो the concepts will also be more clear। जब तक कि we will have on online mode to various discussions will be carried out related with the steel structures, ठीक है। ठीक है, today we will end this today's lectures. Any doubts related with the steel structures? Any queries? Yes, स्टील स्ट्रक्चर समझ में आया सबको, कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा? यस, Yes, sir. साहिल, पल्लवी, Yes, sir. ठीक है। यस सर। बहुत
हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब स्टील स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आपको पेशेंटली यू हैव टू अवेयर ऑफ, मतलब थोड़ा सा आपको अटेंटिवली आपको अटेंड करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा कैसा है कि ऑनलाइन मोड होने की वजह से थोड़ा सा आपको डिज़ाइन स्टेप्स में बोलो या फिर मेरा जो वेरियस स्टेप्स में जो आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर आपका थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे आमने सामने होते हैं ऑफलाइन में, तो इट इज़ ईजिएस्ट वे, है ना। ऑफलाइन मोड जो रहता है वो ईजिएस्ट वे रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑनलाइन में कैसा रहता है कि डिफरेंट स्टेप्स जो फॉलो होते हैं डिजाइनिंग में, तो आपको थोड़ा सा पेशेंटली यू हैव टू गो थ्रू। मैं बार बार आई एस कोड में भी लेके जाऊंगा आपको, आई एस कोड के वो स्टेप भी बताऊंगा जहाँ से वो लेते हैं आप। तो थोड़ा सा कैसा है कि आप यू हैव टू पेशेंटली आपको देखना है, सुनना है, और यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंट स्टेप्स इन योर नोटबुक्स, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट इज यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स इन योर नोटबुक्स, है ना। जब भी आपका स्टील स्ट्रक्चर का लेक्चर रहेगा, आपकी एक नोटबुक और पेन और कैलकुलेटर आपके साथ में रहेगा। और आप क्या करो, मेरे पास, मैं अभी आज के लेक्चर के बाद आई एस 800 2007 का हार्ड कॉपी जो है वो पेस्ट कर दूंगा आपके गूगल क्लासरूम में। जो यू हैव टू गो थ्रू दिस आई एस 800 2007। आप हो सके तो उसका प्रिंट निकाल लो, ताकि नंबर्स के पेजेस नहीं है उसके, ठीक है। तो उसके बैक टू बैक करके उसके प्रिंट निकाल दो, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 यूजफुल फॉर डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एस 800 2007 इज मस्ट मस्ट कंपल्सरी फॉर डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। विदाउट आई एस 800 2007 आपको कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कुछ भी स्टेप आप एक लाइन भी आप नहीं लिख सकते, आपका डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। So every step, every design, every procedure, every thing it has been mentioned बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको आई एस 800 2007 में गिवन है। तो आप जब सॉल्व करेंगे, वाइल वी विल सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड विद डिजाइन, कहाँ से कौन सा स्टेप आया, कौन से पेज नंबर से आया, कौन से क्लॉज से आया, तो दैट डिफरेंट क्लॉज भी मैं मेंशन करूंगा। बट आपके सामने वो क्लॉज खुला होना चाहिए एट द टाइम वाइल वी आर डिजाइनिंग दैट पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है ना। वो स्टेप में जो डिजाइन हो रहा है उसके सामने आपके खुला होना है वो पेज, so that it can be cleared easily, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए हैं। यस, आपको जो ऑनलाइन मोड है, मतलब जैसे आपके पास लैपटॉप है या फिर आपके पास जो डेस्कटॉप है, जहाँ से भी आप इजीएस्ट वे में आप कर सकते हैं, है ना, आप उसको अटेंड करो। बिकॉज ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर्स। तो आपको जो कन्वीनियंट है, आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से अटेंड करो, डेस्कटॉप है तो उससे अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप दोनों भी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल से नहीं हो सकता, मोबाइल से भी आप करो। मगर पेशेंटली हेडफोन लेके और मतलब एक जगह रख के मोबाइल में, है ना, और नोटबुक और पेन और आपका जो कैलसी है और आपका जो आई एस 800 2007 है, ये साथ में लेके एक्चुअल जैसा अपना क्लासरूम जो रहता है वो प्रॉपर वे में अगर आप करेंगे, तो दिस सब्जेक्ट विल बी मोर इजी, है ना। तो आपको ऐसा दिखेगा कि सर क्या पढ़ा रहे और बार बार ये क्या हो रहा है और कौन सा स्टेप कहाँ से आ रहा है और कौन सा डिजाइन स्टेप कहाँ से आप ले रहे हैं, तो ये सारा कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है ना। तो इट इज़ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, जब भी आपका लेक्चर रहेगा तो यू हैव टू कीप hard copy of IS 2007 with you, so that the concepts will be clear, will be more understood, ठीक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर एंड कर देंगे। यस, यस, ओके। बिफोर दैट, आपके जो अटेंडेंस है, यू हैव टू गिव द अटेंडेंस। अटेंडेंस जो रहेगी, मैं एक तो आज के दिन तो नहीं लिया मैंने, बस आज के दिन में यू हैव टू राइट डाउन योर रोल नंबर्स इन अ चैट बॉक्स। आपका जो चैट बॉक्स यहाँ पे आपके पास जो दिख रहा है चैट बॉक्स में, उस चैट बॉक्स में आपके रोल नंबर्स एंड नेम टू बी रिटन इन दिस चैट बॉक्स, ठीक है। दैट विल बी काउंटेड एज द अटेंडेंस, ठीक है। तो आपके रोल नंबर्स और नेम जो है वो आपके चैट बॉक्स में राइट डाउन करो, सो दैट इट कैन बी रिकॉर्डेड एज एन अटेंडेंस। और कल से मैं ओरल अटेंडेंस भी ले लूंगा आपके, और रिटर्न भी जो रहेगा, ये दोनों प्रूफ रहेंगे आपके अटेंडेंस के, ठीक है। यस, अदरवाइज सर व्हाट प्रीवियस मिस्टर। यस,
एक्चुअल में प्रीवियस सेमेस्टर्स के ऐसा कोई सब्जेक्ट इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कैसा है कि सब्जेक्ट से मतलब कैसा है, एक्चुअली दिस सब्जेक्ट इज स्टील स्ट्रक्चर इज स्मॉल डिपेंडेंट ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से डिपेंडेंट है। और ये स्टील स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है कि इट हैज़ बीन रिलेटेड विद एनी अदर सब्जेक्ट इन प्रीवियस सेमेस्टर्स, ठीक है ना। प्रीवियस सेमेस्टर के ऐसे कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। only you have to have a knowledge of little bit knowledge of how to find out the forces in the members, जैसे मैकेनिक्स में था इंक्लाइन मेंबर्स है। इनके ट्रस्ट में आप देखे होंगे, ट्रस्ट में इंक्लाइन मेंबर्स रहते हैं, वर्टिकल मेंबर्स रहते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स रहते हैं। तो फोर्सेस कैसे कैलकुलेट होते हैं वो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा मैकेनिक्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। हाउ टू रिजॉल्व द फोर्सेस, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका वर्टिकल कंपोनेंट, उसका मूवमेंट कैसा होता है। बस ये छोटा सा स्टेप्स आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड रहेगा। बाकी ऐसा कोई डिपेंडेंट नहीं है प्रीवियस सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट से। ये स्टील स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है स्टील स्ट्रक्चर का, बिकॉज ये सारे जो स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं जो आईएस कोड में गिवन रहेगा। तो इट इज़ नो नॉट एज सच डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस सेमेस्टर के सब्जेक्ट से, ऐसा कोई इसका इंटर रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर एंड हो जाएगा। यस, विल एंड द टुडेज लेक्चर। यस, यस देयर विल बी चांसेस ऑफ रीओपनिंग ऑफ द कॉलेज, है ना। कॉलेज का जो आपका है वो ऑफलाइन में देयर में बी अ यूनिवर्सिटी नोटिस आपके एक वीक में या फिर विद इन अ वीक और 10 डेज में आपका एक नोटिस आएगा जिसमें शायद से देयर में बी ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो, ठीक है ना। ऑफलाइन होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सो दैट दिस कंसेप्ट विल बी क्लियर। तो ओपनिंग ऑफ द कॉलेजेस भी होगा, जैसे आपके स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं, कॉलेजेस भी मे बी इट विल बी ओपन इन नेक्स्ट वीक। ऐसा हो सकता है कि भाई यूनिवर्सिटी से कोई एक सर्कुलर आए जिसकी वजह से देयर में बी ओपनिंग ऑफ कॉलेजेस इन नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो जो भी आपका सर्कुलर आएगा एज पर द यूनिवर्सिटी इट विल बी इन्फॉर्म्ड इन योर गूगल क्लासरूम में, या फिर ये आपके जो नोटिस आते हैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में विल बी इन्फॉर्म्ड, जैसा भी होता है कि ऑफलाइन होता है या फिर जैसा। मीन वाइल जब तक कि नहीं होता है तो वी विल हैव लेक्चर्स ऑन दिस ऑनलाइन मोड, ठीक है। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ओके, थैंक यू। So here we will end this today's lectures. Thank you. As per the timetable, next lecture will be there. Thank you. Thank you, sir. Thank you.